My dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to the science class for class 7. And today we are going to learn the remaining thing of chapter 10, that is respiration in organisms. So without wasting time, let's get started. But before proceeding to this class, let's quickly revise what we have learned so far. So we learned that the all living and non-living things require some kind of energy, okay, and for that they require some kind of food or in the form of fuel, okay. Yes. Then we saw the difference between photosynthesis and respiration, okay. Then we saw the different type of respiration, that is aerobic respiration, then anaerobic respiration, okay. Yes. Then we saw that the oxygen is used in aerobic and oxygen is not used in anaerobic. Then the process of respiration, we understood how the process of respiration take place. Then combustion and respiration, okay, we saw the difference between respiration and combustion. Yes. The next stage we saw the inhalation and exhalation, how the taking of air inside our body is called inhalation, and giving out CO2 out from our body, that is called exhalation, okay. Yes, we all these things we have discussed in the previous classes. And yes, finally we discussed in the previous class how in detail how the respiration, how we breathe in detail, how the whole breathing process take place in our body. Yes. Yes, so today we are going to learn the breathing in other animals. So that breathing process is not similar in all the animals, okay. Yes, it is different in different animals, okay. If you take the example of amoeba, okay, so if you take the example of amoeba, so in amoeba the respiration, they do not have the lungs like us, okay. The respiration takes place with the help of diffusion, okay. Diffusion, what do you mean by diffusion? Means diffusion is a process, the flow of material from higher concentration to a lower concentration. मतलब कोई चीज़ जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ से कम जगह पे जब जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है. तो क्या होता है कि अमीबा के बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कम हो जाता है और इसके सराउंडिंग एरिया में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो बाहर से इसके सेल मेम्ब्रेन से होके जब कर्टन जैसा रहता है, तो इसके कर्टन के थ्रू, इसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके बॉडी के अंदर चला जाता है ऑक्सीजन. और जब इसके बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन यूज होता है और CO2 जब उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो ये CO2 अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है, ठीक है. तो जो O2 है वो बाहर से अंदर मूव करता है और जो CO2 है अंदर से वो बाहर डिफ्यूज हो जाता है, सिंपली ऐसे चला जाता है, ठीक है. तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, ओके. यस. इन इंसेक्ट्स लाइक ग्रास अपर, द इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, they have small opening on their body, okay, they have small opening on their body, that is called spiracles, okay. So they breathe with the help of spiracles, okay. Yes. And these spiracles are connected with bronchioles, okay. Yes, these spiracles are connected with the network of pipes called bronchioles, okay. तो ये जो अंदर ये जो होल्स है, इन ये पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू कनेक्ट हैं, ठीक है. और वहाँ से ये जो बॉडी ऑक्सीजन ये लेते हैं, फिर ऑक्सीजन जो यहाँ से ये होल्स के थ्रू लेते हैं, ये इनके बॉडी में जाता है और वहाँ से यूज होकर फिर CO2 जो है इसी रास्ते से बाहर आ जाता है, ठीक है. यस. Then in case of aquatic animals like fish and other aquatic animals, they are provided with the gills, okay. ये जो स्पेशल मैकेनिज्म होता है, that is called gills, okay. So इससे क्या होता है कि जो पानी में, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, they utilize that oxygen, okay, and they give out the CO2 from these gills, okay. Yes. In case of earthworm, they breathe from their moist skin, okay. पूरे स्किन से, उनके पास लंग्स नहीं होता है, ठीक है. तो वो जो उनकी बॉडी सरफेस है उसी से कहीं से भी ये ऑक्सीजन दे कैन अब्जॉर्ब इट, ओके, दे कैन टेक इट ऑक्सीजन, ओके. कहीं से भी वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट से, मतलब कहीं से भी, ठीक है. तो बॉडी सरफेस से ही ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर CO2 रिलीज कर देते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ नॉट, इट्स अ वेरी सिंपल respiration process in these animals, okay. Yes. If we talk about the frog, so frog में जो क्या होता है, it has both, okay, it can respire with the help of lungs,
ओके, व्हेन इट इज़ ऑन लैंड, जब ये लैंड पे होता है, ज़मीन पे होता है, तो ये लंग्स से रिस्पायर करता है, जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है। और जब ये पानी के अंदर होता है तो ये अपने मॉइस्ट स्किन से, अपने बॉडी सरफेस से ये ब्रीथ करता है, ठीक है। यस, यहाँ से इसके बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन जो है इसके बॉडी के अंदर जाता है और CO2 रिलीज होता है, ठीक है, CO2 रिलीज होता है। ओके, यस, एंड वी मैमल्स, यू ह्यूमंस, वी आर प्रोवाइडेड विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड लंग्स, पेयर ऑफ lungs, okay, which help to breathe, okay, yes, which help to exchange the gases in our body. Now the next is, do plants also respire? Yes, so yes, plants also respire, okay, but the thing is that like in human beings, they are not provided with the well structured they do not have the organ to respire, okay, उनके पास organ नहीं होता है जैसे कि lungs, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। यस, तो ये जनरल सरफेस से ही बॉडी अपने सरफेस से रिस्पायर करते हैं, लेकिन वो रिस्पायर करते हैं, इसकी क्या प्रूफ है? हाउ वी विल प्रूव दैट? ओके, सो लेट्स प्रूव दैट दे रिस्पायर, दे प्रोड्यूस CO2, दे टेक ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस CO2, ओके। तो ये कैसे प्रूव करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसे कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ इसमें एक टू साइड जो टू प्लेस पे जो बेंड है, ऐसा एक हम लोग ट्यूब इसमें प्लेस करते हैं और फिर अदर हैंड यहाँ पे वाटर रखते हैं, ठीक है। तो जब वाटर में इसको प्लेस करेंगे तो कुछ वाटर का लेवल ये पाइप में जो होगा, ठीक है। फिर इसमें एक और थ्रेड के हेल्प से इसमें एक और टेस्ट ट्यूब में हम लोग KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, जो अभी, और हम लोग अभी पहले सीड को नहीं रखेंगे, ये जर्मिनेटिंग सीड है, पहले इसको नहीं रखेंगे। तो क्या होगा कि जो इसके अंदर फ्लास्क को हम लोग कॉर्क के हेल्प से, CORK, कॉर्क के हेल्प से बंद कर देंगे, ओके। देन व्हाट विल हैपन, वॉट एवर द CO2 विल बी इनसाइड, इट विल बी ऑब्जर्व बाय द KOH, जो KOH है वो रिएक्ट कर लेगा CO2 से, ओके, और पोटेशियम कार्बन और वाटर बना देगा, ठीक है। तो मतलब कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, फ्लास्क के अंदर। अभी हम लोगों ने सीड नहीं डाला है, फिर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा इसको ओपनिंग करके और इसके अंदर सीड डाल देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अंदर सीड डाल देंगे तो क्या होगा कि जो भी CO2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो भी गैस इसमें प्रोड्यूस होगी वो KOH के साथ में रिएक्ट करेगी, KOH के साथ में रिएक्ट करेगी, इसका मतलब कि वो CO2 है, ठीक है। जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर इसमें क्या है, एम्प्टी स्पेस, वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। और वे वैक्यूम फिल करने के लिए यहाँ से जो एयर का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से एयर का प्रेशर बढ़ेगा और ये जो वाटर लेवल है पाइप में कुछ यहाँ तक फिल हो जाएगा, यहाँ तक या यहाँ तक, ये जो वाटर है इस पर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है जो रिएक्ट कर रहा है KOH से, और फिर यहाँ पे वैक्यूम अंदर खाली हो जा रहा है और फिर ये जो एयर है यहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है और ये वाटर इसके अंदर राइज हो रहा है, वाटर लेवल, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करता है कि जो प्लांट्स है, यानी जो जर्मिनेटिंग सीड है, दे ऑल्सो रिस्पायर, ओके, यस। The next is that to prove that the respiration, during respiration they produce heat, okay, they produce some kind of energy, okay, in the form of heat, okay. So हम लोग क्या करेंगे कि जर्मिनेटिंग सीड लेंगे, ठीक है। तो एक फ्लास्क में हम लोग जो जर्मिनेटिंग सीड है वेल हेल्दी जो जर्मिनेटिंग सीड्स रहेंगे, एक फ्लास्क में हम लोग उसके रखेंगे और एक फ्लास्क में जो जर्मिनेटिंग सीड्स है उसको बॉईल करके इसमें रखेंगे। बॉईल मतलब उसको किल कर देंगे, फिर वो लोग वो ख़राब हो जाती है, सीड डैमेज हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरे फ्लास्क में जो डैमेज सीड है, जर्मिनेटिंग सीड है, जो बॉयल सीड है, उसको दूसरे फ्लास्क में रखेंगे, ठीक है। दोनों में थर्मामीटर रखेंगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर फ्यू आवर, ओके। इसको जो है हम लोग इसको सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन, ओके, जो इसका ओपनिंग है, ठीक है। तो जब 1-2 घंटे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हेल्दी सीड वाला फ्लास्क है उसमें का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, ठीक है, और इसमें का वैसे ही है जैसे पहले था। तो इससे ये पता चलता है कि ये जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो इसमें एक काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ओके, यस। द नेक्स्ट इज यस, सो ब्रीदिंग, सो yes, so as we have discussed that plants do not have the organs like lungs as in human being, okay, they do not have lungs to respiration,
Okay, so they respire with their body surface. Okay, yes, the exchange of gases occur by the process of diffusion, and diffusion of gases occur through these stomata, lenticels and general root surface. Okay, so जो भी लीव्स होता है, लीव्स में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, इसके थ्रू जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है। ठीक है, मतलब कि जो CO2 है वो इसके अंदर अब जाता है और फिर वो अब यूज होता है और फिर सॉरी ये हो गया, ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। ओके, यस, सो ये जो रेस्पिरेशन है ये स्टोमेटा यानी जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा है वहाँ से होता है, प्लस लेंटिसेल्स यानी जो ओल्ड स्टेम हो जाती हैं उनमें कुछ होल होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स, जैसे कि इसमें है। ठीक है, इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन ये दे ऑब्जॉर्ब एंड दे परफॉर्म द ब्रीदिंग। ओके, और फिर ये जो रूट सरफेस है वहाँ से भी ये ब्रीद करते हैं। ठीक है, यस। द नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो जस्ट लाइक सम बैक्टीरिया एंड एंड यीस्ट, जैसे ये बैक्टीरिया कुछ और यीस्ट जो है बिना ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वैसे ही जो सीडलिंग्स है, जो सीड्स हैं, ठीक है, वो भी बिना ऑक्सीजन के वो लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ओके, यस। कैसे, सपोज ये हम लोग दो टम्बलर लेते हैं और इसमें दो टेस्ट ट्यूब लेके ऐसे इन्वर्टेड इसको रखते हैं और इसमें मर्क्यूरी फिल करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी फिल कर देते हैं और यहाँ पे कुछ सीड्स हम लोग प्लेस करते हैं, यहाँ पे कुछ सीड हम लोग डाल देते हैं। तो क्या होगा, पहले ये कंडीशन होगा, बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जगह ऐसा स्पेस खाली हो जाता है और यहाँ का जो मर्क्यूरी लेवल है वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसका लेवल जो है बढ़ जाता है, मतलब कि यहाँ जो मर्क्यूरी है वो इसको नीचे पुश कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है रेस्पिरेशन कर रहा है और यहाँ पे ये जो गैस है ये है CO2, मतलब कि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं सीड्स और दे आर प्रोड्यूसिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यस, सो दैट इज इट इज प्रूविंग दैट द सीड्स आर they are not requiring oxygen. Okay, they are breathing without oxygen and that is called anaerobic respiration. Okay, yes, so that's all. Here you have some question, try to attempt it. Explain breathing in amoeba, cockroach and frog. कैसे अमीबा में, कैसे कॉकरोच में और कैसे फ्रॉग में ब्रीदिंग होता है और कैसे प्लांट में ब्रीदिंग होता है, ये आपको बताना है। ओके, यस, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।